गया. Now continue with your lectures. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. Okay, Good morning, fine. sir. So we'll continue our lectures. Today's we have to continue Unit 2. That is a web form fundamentals. Related that first basic parts we have to clear because in the second practical we have a class, inheritance, overloading, constructor. These are the all parts are there. So today we have to continue with your C# fundamental. That we have to include in the web form fundamental, and then now after that we are getting the web controller like HTML form controller and all that server controller. So unit 2 we have to continue now web form fundamental. That is welcome back Dr. Basa Ambedkar Mahavidyalaya Vasai West TYBST 5th sem subject advanced web programming unit 2 web form fundamental presented by assistant professor Bipin P Vaiti. Okay, so now we'll continue sharing the continue sharing your syllable. See that now syllables web form fundamental we have to writing the code using code behind class events anatomy of the sum of the ASP.NET application, and after that we have to introduce the server controller and your form controller and their events. So related that many controls are there, but first upon we have to clear about the class inheritance. That's why I just revise you C#. सुनाई दे रहा है सबको? Okay. Sir. Yeah. Yes, sir. Now C# related code. So we have to continue with your first upon I completed up to array हुआ था, string हुआ था, okay, string बताया था आपको, yes or no, string बताया था, and then we have to continue with your next part, that is what structure, और structure के बाद enum classes continue. I have to clear the C# also. क्लियर नहीं होता है तो बहुत प्रॉब्लम होगी, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा. ओवरलोडिंग तो वो हम लोग को ASP.NET में डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग को फर्स्ट अपॉन C# ASP.NET practice. Don't worry about it. So structure. What is structure? I said already. Structure is a value data type. It helps to make a single variable and related data of various data types. That means we can make the group of different variables data type together and we give the one name, that is a book, and it becomes a structured data type. And then after that we can reuse that structure anywhere with this name books, and we create the object b1 b2 b3, and we can extract the variable values or assign the variable values. So that is the coding of the structure. See that first upon struct is a keyword. See that struct is a keyword. आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन सबको? Yes. Hello. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. दिखाई दे रहा है. Pankaj Tiwari. Yes, sir. Who is Pankaj Tiwari? Pankaj Tiwari, you have to present all day. Yes. हाँ तो आप लेट ज्वाइन हो गए. आज ही आया सर. आज ही आए. किधर है तेरा नाम? तिवारी पंकज, तेरा नाम किधर है? Sir, 46 Tiwari Pankaj. 46. Yes, Pankaj Tiwari किया है present. Okay. Now define structures. So struct is a keyword. Books, public string title. This is the see that variable title we are given. String, second variable author, third variable subject, fourth variable book ID. There are integer book ID. मतलब there are different types of variables. String also there, integer also there. We can take any variable and we make the group of that variables with the name books. Okay, Anjali Mishra. Yeah. Okay. So books, it is given. Then there after that curly bracket close and semicolon close. That means these are one structures we make the group of variables. And after that in the program, how they use it? See that now how they use. They are using. See that now. Structure using system structure declaration is here. Then they are declare here public class test structure. And here they are using, see that now, books book 1, books book 2. They are creating two objects, book 1 and book 2 of that structure. The structure name is books. और उसका object कौन सा बना है? book 1 and book 2. After that they are assigning that book 1 title, author, subject. C programming, Nuha Ali, C programming tutorial.
This is the book id, that is that. Again they are declaring books to see that reusable, so we can reuse the variable again and again with the different object. book 1 का नाम अलग है, book 2 का नाम अलग है, book 1 का author अलग है, book 2 का author अलग है. So this way we can give the what object with the different object with structure. So object का नाम क्या हुआ, book 2, और यहाँ पे structure में एक साथ group of variable आ गए, title, author, subject and book id. Now they are want to display part में हम लोग for loop से भी कर सकते हैं या डायरेक्टली कर सकते हैं. See that now in the for loop console dot write line डायरेक्टली दिया है book 1 title. See that now value book 1 का पहला वैल्यू उधर डिस्प्ले हो रहा है, 1 title, author, subject, id. अगेन book 2 का वैल्यू दिखा रहे, मतलब डिफरेंट. ये प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं एक बार स्ट्रक्चर का, फिर हम लोग का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा. ओके, तो आई जस्ट कॉपी दैट प्रोग्राम. Go on the your Visual Studio, click on file. मैंने फॉर्मेट किया है, इसके लिए मेरा नया अभी I have to continue now, new project. After that we have to take the what, console application. That's why Visual C#, and then we have to take console application. What is the console application name now here? Here name is given structure, right? We have to give their test structure. आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we have to give the test structure. Go back. ठीक है, उधर होएगा तो कोई इशू नहीं. सर ये पंकज के माइक में से बहुत आवाज आ रहा है, उसको बोलो ना बंद करने के लिए. कौन है पंकज? यस तिवारी. Okay. So here see that now name is given over there. हम लोग को नाम चेंज नहीं करे, ठीक है, चलो जो भी है. आई एम जस्ट कॉपी विद दैट मेन मेथड्स और क्लास. देखो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिक्लेयरिंग दैट स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने कहाँ पे डिक्लेयर किया है? बिफोर क्लास स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया. आफ्टर दैट स्ट्रक्चर के बाद हम लोग को क्या करना है, स्ट्रक्चर को रीयूज करना है इन द मेन मेथड. तो बुक्स 1 से लेके बुक्स 2 एंड कंसोल राइट तक हम लोगों ने वापस कॉपी करके मेन मेथड में वी आर यूजिंग दैट बुक 1 डिक्लेयर दैट. देखो वहाँ पे बुक 1 डिक्लेयर किया है, बुक 2 डिक्लेयर किया है, और आपको फिर बुक 1 विद द वेरिएबल नेम. आफ्टर दैट वैसे ही बुक 2 का किया, बुक 2 डॉट टाइटल, बुक 2 डॉट ऑथर, बुक 2 डॉट सब्जेक्ट असाइन हुआ. देन डिस्प्ले पार्ट अगेन कंसोल डॉट राइट लाइन से हो रहा है बिकॉज दिस इज द जस्ट डॉस बेस. इसके लिए हम लोग कंसोल डॉट राइट लाइन ले रहे हैं बुक 1 और वो डिस्प्ले कर रहे हैं विथ इंडिविजुअल बुक 1 डॉट टाइटल, बुक 1 डॉट ऑथर. यहाँ वैल्यू वो डिस्प्ले कर रहा है. वैसे 2 का वैल्यू इंफॉर्मेशन. देखते हैं आउटपुट. रन F5 फॉर रन. क्लास का नाम, या समझा ना? क्लास का नाम, हेलो, क्लास का नाम. देखो आउटपुट आ गया. बुक 1 पूरा आउटपुट, देन बुक 2 पूरा आउटपुट. So this is called structure. Structures क्या करता है? It build a group of variable, different variable type together. Okay, title, string title, देखो integer, float, एक ग्रुप बना, उसको ऑब्जेक्ट, यहाँ क्लास ये बन गया, स्ट्रक्चर एक नाम बन गया, और उसका ऑब्जेक्ट हम लोग ने इधर बनाया. ठीक है, गॉट इट? यस स्टूडेंट? Yes, sir. Okay, चलो नेक्स्ट. तो दैट इज स्ट्रक्चर. सो फ्यूचर रिलेटेड सी स्ट्रक्चर ऑलरेडी गिवन. क्या बताया देखो अभी. स्ट्रक्चर क्या नाम है? मेथड्स. स्ट्रक्चर मेथड्स हो सकते हैं, फील्ड्स, इंडेक्सर, प्रॉपर्टीज, ऑपरेटर मेथड एंड इवेंट्स आल्सो. तो स्ट्रक्चर क्या है? डिफाइन कंस्ट्रक्टर बट नॉट डिस्ट्रक्टर. स्ट्रक्चर डिफाइन क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्टर कर सकते हैं, बट हम लोग क्या नहीं कर सकते? बोलो स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं कर सकते. डिस्ट्रक्टर का व्हाट इज कंस्ट्रक्टर आपको पता है. सेम नेम ऑफ द क्लास इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर, और डिस्ट्रक्टर इज अ नेगेशन पार्ट ऑफ दैट, नेगेटिव पार्ट. बट कंस्ट्रक्टर आपको कैसे होता है? इट विल क्रिएट और डिफाइन मेनी टाइम. डिस्ट्रक्टर एक ही बार बनाना पड़ता है, पर यहाँ स्ट्रक्चर में डिस्ट्रक्टर यूज नहीं, मतलब डिस्ट्रक्टर के अंदर स्ट्रक्चर हम लोग दिखा नहीं सकते. सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली डिफाइंड, इट कैन नॉट बी चेंज. Unlike classes structure, you cannot inherit
अदर स्ट्रक्चर और क्लासेस, जब तक क्लास और स्ट्रक्चर इनहेरिट नहीं कर सकते। इनहेरिट मतलब क्या, इनहेरिटेंस पार्ट मतलब समझे, इनहेरिट मतलब क्लास का बेस क्लास डिराइव्ड क्लास नहीं कर सकते, आगे आने वाला है। कैनॉट बी यूज अ बेस फॉर अदर स्ट्रक्चर और क्लासेस, स्ट्रक्चर कैनॉट बी यूज अ बेस, बेस नहीं बना सकते और अदर स्ट्रक्चर क्लासेस भी नहीं। स्ट्रक्चर कैन इंप्लीमेंट वन और मोर इंटरफेसिंग अलाउड है, इंप्लीमेंटेशंस विद द डिफरेंट इंटरफेसिंग्स अलाउड दिया हुआ है। आफ्टर दैट they are given over there कि यहाँ पे when you create struct object using a new operator, अगर आपने new operator से struct की यूज किया तो it gets created and the appropriate constructor is called, उससे appropriate constructor call हो सकता है, ये बताए। So if the new operator is not used, the fields remain unassigned, अगर new operator नहीं यूज किया तो unassigned होगा। Object cannot be used until all the fields are initialized, जैसे यहाँ पे उन्होंने न्यू ऑपरेटर यूज किया है। देखो न्यू ऑपरेटर मतलब क्या, याद है, बुक्स, बुक वन न्यू बुक्स, इसका मतलब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। बुक्स, बुक्स टू न्यू बुक्स, इसका मतलब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। एंड देन दे असाइंस द वैल्यू, बुक्स वन डॉट गेट वैल्यू, गेट वैल्यू इज द इनबिल्ट मेथड, वहां से कितने वैल्यूज थे वो ले रहे हैं, सी प्रोग्राम वाली, इस तरह भी हम लोग असाइन कर सकते हैं। देखो गेट वैल्यूज इज मेथड, गॉट इट, अंडरस्टूड स्टूडेंट? यस, गेट वैल्यूज मेथड से भी हम लोग असाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पे न्यू बुक्स करके हम लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, हमने न्यू कीवर्ड यू हैव टू यूज ओवर देयर टू क्रिएट द स्ट्रक्चर न्यू ऑब्जेक्ट, गॉट इट? यस स्टूडेंट, हेलो Yes, Yes, sir. sir. या, Yes, sir. दिस इज द स्ट्रक्चर्स इज गिविंग, ओके। अभी हम लोग को नेक्स्ट देखना है आफ्टर स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे क्लास वेरियस स्ट्रक्चर बताए हुए हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स को बताया हुआ है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स को करके दिखाया और एग्जांपल दिया है। सेम एग्जांपल दे यूज इट ओनली गेट वैल्यूज और डिस्प्ले, डिस्प्ले करके अलग मेथड यूज करके डिस्प्ले भी किया हुआ है। देखो यहाँ पे टाइटल, ऑथर और डिस्प्ले एक जैसा, बुक वन डॉट डिस्प्ले सेम, देखो सेम मेथड, ये है सेम मेथड है डिस्प्ले, लेकिन उन्होंने दोनों को ऑब्जेक्ट को यूज किया है, बुक वन डॉट डिस्प्ले, बुक टू डॉट डिस्प्ले, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने स्पेसिफाई कुछ नहीं किया, यहाँ क्या लिखा है, टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, बुक आईडी, इट इज अवेलेबल इन योर स्ट्रक्चर, तो वो बुक वन का टाइटल लेगा, बुक टू का ऑथर लेगा, बुक, फिर बाद में नेक्स्ट टाइम बुक टू डॉट टाइटल लेगा, बुक टू डॉट ऑथर लेगा, अंडरस्टूड? तो सेम मेथड दे कैन यूज फॉर बोथ ऑब्जेक्ट, बुक वन एंड बुक टू, क्लियर? यस स्टूडेंट? Yes, sir. ओके, तो ये Yes, हुआ sir. क्लियर। Yes, sir. ये बेसिक पार्ट है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है कि बेसिक पार्ट्स हम लोग को करना क्यों है, क्योंकि ASP.NET में इजी जाए, नहीं तो क्योंकि आपका पहला सिलेबल एक्चुअली C# होता है, लेकिन अभी क्या है, सिलेबल चेंज हो चुका है, तो हम लोग को बेसिक पार्ट्स डायरेक्टली एज्यूम करना पड़ता है कि बच्चों को आता है, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं आता है, हम लोग को करना पड़ता है, वी हैव टू डू इट, तो वो ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट थिंग, इनम, इनम इज अ एन्यूमरेशन, इज अ सेट ऑफ नेम्ड इंटीजर कंस्टेंट, हम लोग को कोई खुद का डेटा टाइप बनाना होगा, इंटीजर कंस्टेंट खुद का बनाना होगा, तो इनम कीवर्ड यूज करते हैं। तो एन्यूमरेशंस आर वैल्यू डेटा टाइप एंड इन अदर एन्यूमरेशन कंटेन इट्स ओन वैल्यूज, खुद के वैल्यूज क्रिएट कर सकते हैं, एंड इट कैन नॉट इनहेरिट, इट कैन नॉट पास इनहेरिटेंस, वो इनहेरिटेंस को पास नहीं करते। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने क्या किया इनम को, इनम डेट्स, डेट्स करके नया वेरिएबल डेटा टाइप बनाए, जैसे int होता है, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है, वैसा नया आ गया डेज, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मैन्युअली बनाया, और उनके करली ब्रैकेट में डेज में क्या आना चाहिए वो लिखा हुआ है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसे वैल्यूज दिए हुए, तो दैट डे यूज, सी दैट नाउ एग्जांपल, इनम डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे उन्होंने डिक्लेयर किया, डेज करके खुद का डेटा टाइप हुआ। अभी नाउ दे इन int वीकडेज एक वेरिएबल ले रहे हैं, और उसके अंदर देखो डेज इंटीजर, इंटीजर डेज डॉट मंडे, मतलब यहाँ क्या स्टोर हो रहा है, मंडे का इंटीजर वैल्यू स्टोर हो रहा है, देखो आउटपुट में मंडे का स्टोर वैल्यू क्या आ रहा है 1, डेज डॉट फ्राइडे, फ्राइडे का इंटीजर वैल्यू क्या स्टोर हो रहा है 5, गॉट इट? यस स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. किसी को नहीं समझ में आता है तुरंत आप लोग बता सकते हो, पूछ सकते हो, बीच में आप लोग पूछ सकते हो, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन कॉल। क्लियर हो गया आपको इनम मतलब क्या है? यू कैन क्रिएट Yes, sir. ओन डेटा टाइप, खुद का डेटा टाइप बना सकते हैं। डेट्स करके एक डेटा टाइप हुआ और उसके अंदर जो वैल्यूज डिक्लेयर किए वो डेट्स के वैल्यूज हो गए, तो उन्होंने डेट्स का इंटीजर वैल्यू फाइंड आउट किया 1, बिकॉज 1 देखो 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है और 0 के बाद 1, 1 मतलब 1 डे, 5 मतलब फ्राइडे, गॉट इट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Enumerations. Now next thing, after that
इंपॉर्टेंट पार्ट अभी जो हम लोग को लगने वाला है ASP.NET में वो है क्लास. ऑलरेडी वी आर क्लियर अबाउट द वेरी वेल नोन इन द C++ की क्लास क्या होता है कैसे होता है. फिर भी जस्ट रिवाइज इन द C#. A class definition starts with the keyword class followed by the class name and the class body enclosed by the pair of curly braces. Class name से class start होता है और उसके बाद आपको curly bracket में आपका class चालू होता है, open curly bracket, close curly bracket. There are many access specifier are there, private, public, internal. Access specifier already हम लोगों ने explain किए थे. It specify the access rules for the member as well as the class itself. If not mentioned, then the default class क्या होता है? Internal. अगर वो mention नहीं किया internal या default access क्या होता है? Private. Private accessing होता है. अगर class को कुछ भी declare नहीं किया है, जैसे इधर कुछ भी नहीं किया है, तो it is a private access or it is an internal specifier. Got it? नेक्स्ट, अभी यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है क्लास बॉक्स. देख सकते हो आप लोग क्लास बॉक्स. दे आर डिक्लेयरिंग देयर 3 मेंबर्स. व्हाट इज द मेंबर? लेन, ब्रीथ एंड हाइट. डबल लेन, डबल ब्रीथ, डबल हाइट दिया हुआ. दे आर यूजिंग पब्लिक. ओके, वेरिएबल्स आर पब्लिक, बट यहाँ पे जो एक्सेस स्पेसिफायर है बॉक्स को वो क्या किया है? प्राइवेट. कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया. दैट मीन क्लास, एक क्लास खत्म हो गया. व्हाट इज द क्लास? क्लास इज अ वे टू बाइंडिंग द डेटा मेंबर एंड मेथड्स टुगेदर. यहाँ ओनली बाइंडिंग क्या कर रहे हैं? मेंबर, डेटा मेंबर. देन क्लास बॉक्स टेस्टर. अभी क्लास बॉक्स टेस्टर के अंदर मेन मेथड है, इसका मतलब फाइल का नाम मेरा क्या होना चाहिए? बॉक्स टेस्टर ही होना चाहिए. आफ्टर दैट दे आर डिक्लेयरिंग बॉक्स को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. बॉक्स 1 न्यू बॉक्स. देखो इसको बोलते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना. बॉक्स इज योर क्लास नेम, बॉक्स 1 इज योर न्यू ऑब्जेक्ट एंड वी आर क्रिएटिंग द न्यू बॉक्स ऑब्जेक्ट. ओके, बॉक्स 1. देन वैसे ही बॉक्स 2 बनाए एंड देन दे आर यूजिंग डबल वैल्यूम 0. पहले वैल्यूम क्रिएट करने से पहले उन्होंने 0.0 डेसिमल डबल पॉइंट लिया हुआ. अभी बॉक्स 1 की हाइट डिक्लेयर कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं. बॉक्स 1 लेन डिक्लेयर कर रहे हैं, बॉक्स 1 ब्रीथ डिक्लेयर कर रहे हैं. दैट मीन दे आर असाइनिंग द वैल्यू. वैसे ही बॉक्स 2 की भी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, हाइट, लेंथ एंड ब्रीथ. आफ्टर दैट वैल्यूम क्रिएट करने के लिए वैल्यूम को कैलकुलेट कर रहे हैं. वैल्यूम का कैलकुलेशन है बॉक्स 1 डॉट हाइट इंटू बॉक्स 1 डॉट लेंथ इंटू बॉक्स 1 डॉट ब्रीथ. कैलकुलेशन हो गया हाइट इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ एंड दे आर डिस्प्लेइंग द वैल्यूम ऑफ द बॉक्स. गॉट इट? वैसे ही बॉक्स 2 का लिया. समझ में आया? क्लियर? चलो एक प्रोग्राम हम लोग करके देख लेते हैं. ओके, सो वी जस्ट गो ऑन दैट फाइल, क्लोज द सॉल्यूशंस. ओके, now go to the file, new project. after that Visual C# console application. यहाँ फाइल का नाम एक तो हम लोग बॉक्स टेस्टर ले सकते हैं या बॉक्स ले सकते हैं. ठीक है, ओके आ गया. नाउ क्लास प्रोग्राम से हम लोग ले चेंज कर लेते हैं. दे आर डिक्लेयरिंग द क्लास बॉक्स. एक्चुअली अभी हम लोग को बॉक्स 1 लेना पड़ेगा. ठीक है, हम लोग ले लेते हैं बाद में. नेम स्पेस सेम नहीं होना चाहिए ना. वी आर डिक्लेयर द क्लास बॉक्स. ओके, चलेगा. बी कैपिटल है ना, चलेगा, कोई इश्यू नहीं. नाउ नेक्स्ट थिंग, क्लास बॉक्स टेस्टर स्टैटिक वॉइड मेन में एंड देन कॉपी पेस्ट. ओके, सी दैट हो गया हमारा प्रोग्राम. क्या है कि एक क्लास बनाए जिसमें अंदर वेरिएबल डिक्लेयर है. फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम लोग क्रिएट कर रहे हैं नया ऑब्जेक्ट एंड देन नए ऑब्जेक्ट में वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं बॉक्स 1 में, और बॉक्स 2 अनदर ऑब्जेक्ट है उसमें भी डिक्लेयर कर रहे हैं, और फिर बाद में कैलकुलेशन करके डिस्प्ले कर रहे हैं. ओके, चलो देख लेते हैं आउटपुट. box.exe is missing, unexpected. Okay, then curly bracket run. हो गया. देखो वैल्यूम आ गया 210 बॉक्स 1 का और बॉक्स 2 का 15. Yes, sir. Got it? Clear about that? 156. Yes. ऑब्जेक्ट. Yes, sir. Yes, sir. क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का है वो आना चाहिए. क्लास, उसका नया ऑब्जेक्ट यहाँ बनाया हुआ है, ये क्लास का न्यू ऑब्जेक्ट. Got it? जो पहले स्ट्रक्चर Yes, sir. काम कर रहा था अभी हम Yes, लोग sir. क्लास से कर रहे हैं, क्योंकि क्लास वी आर रिक्वायर्ड फॉर इनहेरिटेंस एंड ऑल दैट. स्ट्रक्चर इनहेरिटेंस में नहीं इंक्लूड कर सकते. That's why we have to use the class. Got it? Yes, student? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट. इसके बाद उन्होंने मेंबर फंक्शन, मतलब
क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन और एनकैप्सुलेशन भी बताया. व्हाट इज मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास? इज अ फंक्शन that has been defined definition or its prototype within the class definition similar to any other variable. जैसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी के अंदर हम लोग फंक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं. तो यहाँ देखो इन्होंने क्लास बॉक्स बनाया हुआ है, प्राइवेट लेन ब्रीड मेंबर भी डिक्लेयर किए और उसके साथ साथ नया फंक्शन डिक्लेयर किया, मेथड डिक्लेयर किया. व्हाट इज दैट मेथड? सेट लेन. तो सेट लेन करके नया मेथड आया और उसके अंदर वैल्यू असाइन किया है. लेंथ इज इक्वल जो पासिंग वैल्यूज है. पासिंग वैल्यू कैसे पता चला? बिकॉज वी आर यूजिंग द पैरामीटर इन द फंक्शन डबल लेन. तो ये डबल लेन कहाँ से पास हो रहा है? यहाँ से. सेट लेन 6.0 यहाँ आ रहा है, 7.0 ब्रीड आ रहा है, 5.0 हाइट आ रहा है. तो दे आर यूजिंग सेट लेन, सेट ब्रीड, सेट हाइट. दिस इज द functions of the box class. After that they use the another method that is a get value और उसमें उन्होंने रिटर्न वैल्यू दिया है. देखो रिटर्न में क्या लिया है? लेन इंटू ब्रीड इंटू हाइट. बिकॉज यहाँ हम लोगों ने लिखा है डबल, यहाँ लिखा था वाइड लिखा तो इट शुड रिटर्न ओनली फंक्शन, इट शुड नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. समझ में आया? वाइड में क्या होता है? इट शुड नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, इट शुड रिटर्न फंक्शन. और यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ क्या आ रहा है? लेंथ इंटू ब्रीड इंटू हाइट क्या आ रहा है? डबल है. तो डबल में रिटर्न वैल्यू रिटर्न कीवर्ड लिया. ओके, क्लियर अबाउट दैट? ओके यस. यस सर. एक क्लास देखो, एक क्लास हुआ पूरा. ये अभी तक क्लास. अभी इस क्लास को ऑब्जेक्ट बना के हम लोग कॉल करेंगे. कहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट बनाया है? यहाँ पे. बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू बॉक्स न्यू ऑब्जेक्ट बनाया. देन उसके अंदर वैल्यू असाइन करके पास किया. सेट लेंथ, सेट ब्रीड, सेट हाइट. वैसे ही बॉक्स 2 का भी सेट लेंथ, सेट ब्रीड, सेट हाइट. और फिर वैल्यूम का वैल्यूम करके एक कीवर्ड नया वेरिएबल लिया है. उसके अंदर हम लोग किसका वैल्यू स्टोर कर रहे हैं? गेट वैल्यूम से जो वैल्यू रिटर्न आएगा लेंथ इनटू ब्रीड, गेट वॉल्यूम का वो वैल्यूम में स्टोर होगा और वो वैल्यूम इधर दिखाएगा. गॉट इट? यस स्टूडेंट. चलो ये भी हम लोग देख लेते हैं. यस सर. चेक कर लेते हैं. पहले वो आपको क्लास बॉक्स लेते हैं और उस क्लास बॉक्स की जगह हमारा ये आ गया. फिर उसके बाद क्लास बॉक्स टेस्टर ले लेते हैं. उसके अंदर यहाँ पे क्लास बॉक्स टेस्टर से लेके यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड देन रन. आउटपुट आ गया, सेम आउटपुट. गॉट इट? यस स्टूडेंट. हेलो. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. कैसे they are using that functions member को भी यूज करके रिटर्निंग फंक्शन वैल्यूज को असाइन करके they are showing the value. Got it? Yes student. यस. Any doubt? Yes, sir. यस सर. क्लास को कैसे No. यूज करना No, है? क्लास No, डिफाइनिंग sir. फंक्शन, नो सर. रिटर्निंग वैल्यूज, इस तरह हम लोग को यही हम लोग को ASP.NET में अभी करना है बाद में. ओके, तो वो सारे क्लियर. ओके सर. हो गया आपका? समझ में आया? यस स्टूडेंट. सो 2 मिनट्स आर Yes, sir. यस सर. 2 मिनट्स के बाद आपको रिजॉइन होना है. तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर. क्लास आया तो क्या आना चाहिए? कंस्ट्रक्टर भी आना चाहिए. कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास that is executed whenever we create the new object of that class. क्लास का ये दूसरा नाम, सेम नेम अगर क्लास से डिक्लेयर किया ऐसा मेथड में तो उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर. जैसे इधर देखो क्लास का नाम लाइन है और मेथड का फंक्शन का नाम भी क्या है? लाइन. ये कौन सा यूज करेगा? लाइन. लाइन. तो ये जो फंक्शन है कंस्ट्रक्टर, इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर. व्हाट इट? कंस्ट्रक्टर. क्लास का नाम लाइन है और आपके फंक्शन डिक्लेयर हुआ फंक्शन का नाम भी क्या है? लाइन. इसका मतलब लाइन इज अ व्हाट? कंस्ट्रक्टर. इट इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर वी क्रिएट द न्यू ऑब्जेक्ट. जहां नया ऑब्जेक्ट बनेगा, न्यू बॉक्स, न्यू लाइन, वहां वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा. कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं है. कंस्ट्रक्टर हैज एग्जैक्टली द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास and it does not have any return type. इसके अंदर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, इसलिए उन्होंने void, double कुछ भी लिखा नहीं है. Got it? Yes student. यस सर. Yes, sir. Yes, so that is the example. See that now example. Class line private line दिया हुआ, एक member variable दिया है और लाइन के अंदर उन्होंने एक जस्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया है और उसके अंदर एक console.writeLine दिया. ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड. इसका मतलब दिस विल automatically invoke
ऑटोमेटिकली इन्वोक, ये क्रिएट अपने आप होगा और ऑब्जेक्ट जिधर जिधर बनेगा उधर वो इन्वोक एग्जीक्यूट अपने आप होगा, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। नाउ उसके बाद उन्होंने सेट लेन दिया हुआ है, उसके अंदर सेट लेन में देखो दे आर असाइनिंग द वैल्यू लेन, पहले जैसे वैल्यू, फिर गेट लेन, रिटर्न लेन किया हुआ है, गेट लेन से वैल्यू रिटर्न किया हुआ है। सो मेन मेथड में देखो लाइन का एक ऑब्जेक्ट बना है, न्यू लाइन, लाइन स्मॉल वेरिएबल स्मॉल लेटर में है तो चलेगा, इट इज डिफरेंट, लाइन